Hello, good morning, students. Hope you all are fine. Today we will see your English supplementary, chapter number 4, The Treasure Within. Okay, now see, children, this story is of one is about one contractor. Okay, let us see who is that. Okay, कौन है वो contractor और what is the story based on that contractor. So let us see, children. So see, this is a brief biography of Hafiz contractor. Okay, Hafiz contractor था, उसके related उसकी ये biography है. First, see, children, he was born on 19th June 1950 in Mumbai, Maharashtra. Okay, now who are the family members in his family? Okay, he was a Parsi Zoroastrian family. Okay, he was belonged to a Parsi family. His nationality was Indian. His mother Roshan, who was a teacher. Okay, Hafiz की mother teacher थी. Father Saurabh was a contractor, a businessman. Okay, now see, what was his education? See, he did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University, New York on a Tata scholarship, and then went on to pursue a post-graduation degree from Columbia University in New York. Okay, see, children, he has done a graduate diploma in architecture from Mumbai. Then he completed his graduation from Columbia University, New York, and same for the postgraduate, he also went to Columbia University in New York. Now see, presently he is a member of the Bombay Heritage Committee and New Delhi Lutyens Bungalow Zone Review Committee. Okay, see, you can see here one image, children, in this blue oval shape. You can see here one image, one building. Okay, so this design is designed by Hafiz contractor. ये जो आपको दिख रही है डिज़ाइन, वो Hafiz contractor ने डिज़ाइन की है. See the picture of Hafiz contractor. Okay, architect Hafiz contractor's carefree school life. Now let us see about his school life. See, children, Hafiz contractor is a leading architect of India. Okay, वो उसका नाम था architect में. But as a school boy, he did not do well. पर वो जब स्कूल में था तो वो इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में. From the third standard onwards, he seemed to have lost all interest in studies. जब वो थर्ड में था तभी से उसका इंटरेस्ट स्टडीज़ पर से ख़त्म हो गया था. He was bad at languages तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी. He hated mathematics. See, उसे मैथमेटिक्स भी पसंद नहीं था. He had nightmares about his mathematics exam. उसे नाइटमेयर आते थे उसकी मैथमेटिक एग्ज़ाम के. See, he used to copy in every test until he reaches class 11. वो जब तक क्लास 11 में आया तब तक उसने हर साल कॉपी करके ही टेस्ट दी है. He was pulled at school. उसे धक्के मार के मीन स्कूल ख़त्म की उसने. He received a caning every week. He didn't bother and he was interested in playing and nothing else. Okay, हर मीटिंग में हर बार हर वीक उसकी कंप्लेन आती थी. But he didn't bother. पर उसको उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था. He was only interested in playing and nothing else. Okay, children. See, children, Hafiz contractor loved action, not theory. Okay, उसे theory पसंद नहीं थी, practical action उसे पसंद था. So as a school boy, Hafiz contractor was more interested in games and playing funny pranks on others. Okay, पहले से उसे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था और दूसरों के साथ मजाक मस्ती करने में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट था. ओके, सो ही वॉज अ गैंग लीडर एंड वुड हैव गैंग फाइट्स. वो पूरी गैंग का लीडर था. ही वुड प्लान स्ट्रेटजीज. ही वॉज द कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम. ओके, जो स्कूल क्रिकेट टीम थी उसका वो कैप्टन था. Hafiz says that he has learned more by doing than from the books. ओके, उसका कहना ये था कि बुक से ज़्यादा मुझे
सीखना करने से सीखता है वो. ओके, बाय डूइंग द प्रैक्टिकल थिंग्स ही यूज टू लर्न मोर थिंग्स. सो एज फॉर हिमसेल्फ द स्कूल लाइफ मेड हिम अ स्ट्रीट स्मार्ट. स्कूल लाइफ ने उसे ज़्यादा स्मार्ट बना दिया था. ओके, नाउ सी व्हाट वाज हिज स्पेशल इंटरेस्ट. उसे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था. एट स्कूल कॉन्ट्रैक्टर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स देन स्टडीज़. ओके, जब वो स्कूल में था उसे दूसरी चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना कि पढ़ने में. इफ़ इट रेन्ड आउटसाइड द क्लास ही वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर इनटू अ डैम. ओके, अगर बाहर बारिश हो रही होती है तो वो खिड़कियों से देखता था और वो वही सोचता था कि एक फ्लोइंग वाटर डैम में कैसे इकट्ठा होता. ओके, ही वुड ड्रीम हाउ मच वाटर द डैम वुड होल्ड. वो सोचता था कि एक डैम में कितना पानी भर सकता है. सो एवरी सैटरडे द स्टूडेंट्स वर अलाउड टू गो टू मूवी. ओके, हर एक सैटरडे. सी कितनी अच्छी लाइफ थी उन लोगों की. एवरी सैटरडे द स्टूडेंट्स वर अलाउड टू गो टू अ मूवी. ओके, सो हफीज़ वॉज द लीडर एंड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स टू बुक टिकट्स. देखो उसमें वो आगे रहता था, वो सबके पास से पैसे कलेक्ट करता था और टिकट्स बाय करता था. ओके, टिकट बुक करता था. नाउ सी द प्रिंसिपल्स एडवाइस वर्कड. प्रिंसिपल ने क्या एडवाइस दी थी उसे. सी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन ओनली बाय कॉपिंग. ओके, वो 10th की एग्ज़ाम मीन्स अप टू 10th तो वो कॉपी करके ही पास हुआ था. नाउ हाउएवर व्हेन ही रीच्ड हिज 11th क्लास the principal called him and advised him to act as a responsible grown up boy and take his studies seriously. Okay, अब जब वो 11th में आया तो उसके प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और समझाया, एडवाइस दी कि अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो और अपने स्टडीज़ को थोड़ा सीरियसली लो. द प्रिंसिपल्स एडवाइस हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन हफीज़. अब प्रिंसिपल का एडवाइस उसे बहुत अंदर तक लगा. So for a whole year he didn't go to playground and studied all his book starting right from the 5th class. As a result he scored 50% mark in his SSC exam. Okay, अब पहले क्या था, 10th बोर्ड नहीं था, 11th बोर्ड था. ओके, पहले के ज़माने में. तो सी वॉट ही हैज़ डन. जो प्रिंसिपल ने उसे एडवाइस दी वो उसे लग गई. सो ही स्टार्टेड स्टडिंग. तो वो पूरा साल प्लेग्राउंड में गया ही नहीं, खेला ही नहीं और स्टार्टिंग से मीन्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th क्लास से वो सारी बुक्स उसने सब कुछ पढ़ लिया. सो ही स्कोर्ड 50% मार्क इन हिज SSC एग्ज़ाम. तो उसे 50% आए. ओके, नाउ सी व्हाट ही हैज़ डन. जॉइनिंग जय हिंद कॉलेज मुंबई. नाउ हफीज़ वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स. ओके, उसे पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना था बट हिज आंट वांटेड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन. पर उसकी आंट चाहती थी कि वो ग्रेजुएशन करे. सो इट वॉज नॉट ईजी टू ज्वाइन अ कॉलेज विथ ओनली 50% ऑफ मार्क. ओके, ईजी नहीं था सिर्फ 50% मार्क लेके कॉलेज में एडमिशन लेना. बट हफीज़ गॉट एडमिशन. उसे एडमिशन मिल गया इन जय हिंद कॉलेज मुंबई बाय इन्फ्लुएंस. ओके, मीन्स उसे वहाँ एडमिशन मिल गया. सो हफीज़ हैड टू ऑप्ट फॉर आइदर फ्रेंच और जर्मन. ओके, उसे ऑप्शन सिलेक्ट करना था, either French or German. So he had studied French at school but knew nothing about it. Okay, वो स्कूल में फ्रेंच ही पढ़ा था बट उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं था. So he decided to take German. But after some time his German teacher died. So finally he had to take up French. उसने जर्मन सिलेक्ट किया था बट थोड़े ही टाइम में उसके जर्मन मीन्स टीचर थे वो मर गए. सो उसे फाइनली फ्रेंच में ही कंटिन्यू करना पड़ा. ओके, नाउ सी हाफिज़ इन एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस. नाउ सी चिल्ड्रन, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम हिज कज़िन हुज हस्बैंड वॉज एन आर्किटेक्ट. ओके, उसकी एक कज़िन थी, उसके हस्बैंड आर्किटेक्ट थे तो उससे पास से हाफिज़ फ्रेंच सीखने लगा. सो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैड टू गो टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस और इसलिए वो आर्किटेक्ट की ऑफिस जाता था. ओके, उसकी कज़िन के हस्बैंड के पास. So one day he saw somebody drawing a window in this office. Okay, एक दिन उसने देखा कि कोई विंडो ड्रॉ कर रहा है. Hafiz pointed out the mistake in the sketch and told the man that the window would not open. Okay, वो जो स्केच बना रहा था उसमें हाफिज़ ने एक मिस्टेक फाइंड की और उसने बोला
कि अगर ऐसे विंडो रखोगे तो विंडो खुलेगी नहीं. लेटर इट वॉज फाउंड दैट हाफिज वॉज राइट. फिर आगे जाके पता चला कि हाँ हाफिज सही कह रहा है. ओके, सो हिज कजिन्स हस्बैंड वॉज इम्प्रेस्ड. तो उसकी कजिन का हस्बैंड इम्प्रेस्ड हो गया था एंड ही आस्क्ड हाफिज टू ड्रॉ फ्यू स्केचेस एंड डिज़ाइन ऑफ अ हाउस. सो उसने हाफिज़ को बोला कि तुम थोड़े बहुत स्केचेस और हाउस की डिज़ाइन हमें ड्रॉ कर दो. सो हाफिज़ डिड इट वेल एट वंस. एक ही बार में उसने बहुत अच्छे से बना ली. सो द आर्किटेक्ट आस्क्ड हिम टू गिव अप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर. ओके, सो आर्किटेक्ट ने उसे बोला कि सब कुछ छोड़ के तुम आर्किटेक्ट ज्वाइन कर लो. ओके, सो सी चिल्ड्रन, सो ऐसे उसने आर्किटेक्ट ज्वाइन किया. सो ही जॉइन्स आर्किटेक्चर. So the architect took Hafiz contractor to the principal of the college for architecture. आर्किटेक्चर की कॉलेज के प्रिंसिपल के पास उसे ले गए. बट एडमिशन वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर विथ ओनली 50% मार्क. पर उसे सिर्फ 50% मार्क थे एसएससी में, इसलिए एडमिशन होना मुश्किल था. बट द प्रिंसिपल अलाउड हिम टू अपीयर द एंट्रेंस टेस्ट. पर प्रिंसिपल ने क्या किया, उसे अलाउ किया कि हाँ तुम एंट्रेंस टेस्ट दे दो. So see children, he got A plus grade और उस एंट्रेंस टेस्ट में उसे A plus grade मिला. He stood first class first in all the subsequent examinations. Okay, सारी एग्ज़ाम में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया. So after that he never looked back. फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975. And he completed his graduation from Columbia University, New York, on a Tata scholarship. उसे स्कॉलरशिप भी मिली, देखो, क्योंकि वो इतना स्कॉलर था. ओके, सो दिस वॉज द career, Hafiz career as an architect. See, Hafiz contractor, he commenced his career in 1968 with his uncle T. Khargat, okay, as an apprentice architect. वहाँ उसने apprentice architect की तरह काम किया. And in 1977 he became the associated partner in the same firm. और उसी फर्म में फिर वो पार्टनर बन गया. ओके, सो बिटवीन 1977 and 1980 Hafiz has been a visiting faculty at the Academy of Architecture, Mumbai. Now see children, जो पढ़ना नहीं चाहता था, जो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, वो खुद एक दिन फैकल्टी बना, टीचर बना. ओके, मुंबई की आर्किटेक्चर एकेडमी में. सो ही स्टार्टेड हिज फर्म आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इन 1983. अब 1983 में उसने खुद की फर्म शुरू की, आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. ओके, सो वन ऑफ हिज फर्स्ट सक्सेस स्टोरीज इन द वास्तु बिल्डिंग एट वर्ली सेफेस. ओके, वर्ली सेफेस पे उसने अपने एक खुद का सक्सेस वहाँ जाकर हुआ जब उसने वो अपनी पहली वास्तु बिल्डिंग बनाई. ओके, ही देन बैक्ड प्रोजेक्ट्स इन पुणे फॉर कार्या बिल्डर्स एंड लॉट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग. ही हैज़ ऑल्सो डिज़ाइन द इम्पेरियल. सी चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर द इम्पेरियल टावर्स, वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए हैं. ओके, सो सी चिल्ड्रन, दिस वॉज हिज अचीवमेंट. ओके, तो सी चिल्ड्रन, उसके अंदर जो छुपा था ट्रेजर, ओके, वो बाहर आया. हाँ, सो सब सी चिल्ड्रन, कोई ऐसा होता है जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं हो पर किसी और चीज़ में अच्छा हो. सी, हर एक चिल्ड्रन खास होता है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है. ओके, बट दैट यू हैव टू फाइंड व्हाट ट्रेजर इज़ देयर विद इन. ओके, आप में क्या ट्रेजर है वो आपको फाइंड करना है. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ व्हाट द story about the Hafiz contractor, the treasure within. Okay, now see children, what you have to do is you have to write question answer of this chapter in your fair book. Okay, I will send PDF of this chapter. Okay children, thank you. Stay home, stay safe.